Hello everyone, welcome back to my channel Road to Library where we learn English with fun. For those who are new to my channel, please go and subscribe to it and press the bell icon so that you can get the notification every time I come online. So guys, today's video is regarding the common phrases that we use in our daily life conversations. I'll be telling you those common phrases with their meanings in Hindi, and I'll be also telling you the usage of those phrases plus the situations where you can use them. And I'll be also telling you some bonus words in between the video, and there is a homework also for you to do today. And there is something, every time I tell you that there's a surprise at the end. So today also there is a surprise, but in a twisted way. I'll be telling you one myth that you should not use. So let's get going. You must have heard me every time saying that use the phrases, use the words in daily life conversations. Daily baat karo English mein, try karo. So what are those daily life conversations? Daily life conversation is the communication you do with your nearby people, the people around you. Suppose you go to your friend's house, there you can talk. If your friend comes at your home, there you can. When you are accepting something or refusing something, or when you are wishing someone, or when you are asking somebody's health about their health, when you are replying for somebody's question, etc, etc, etc. So these are some situations where you can use English words or where you can always communicate in English. So I'll be telling you those phrases. So let's begin with the video. Don't leave it in between, don't miss it, and watch it till the end. Learn as much as you can from this video, grab as much as you can from it. So the first phrase is same as always. Same as always means हमेशा एक जैसा दिखना, हमेशा एक जैसा रहना. For example, you look the same as always. आप जैसे हमेशा दिखते हो वैसे ही अभी दिख रहे हो. You look the same as always. हमेशा एक जैसा दिख रहे हो. Our next phrase is take your pick. Take your pick means जब आपको किसी को choice देनी हो. Suppose बहुत सारी chocolates या बहुत सारी आइसक्रीम्स रखी है. So we'll say take your pick. आपको जो पसंद है वो ले लो. Choose your thing. Take your pick. Take the chocolate. Take your pick. नेक्स्ट इज मेक योर सेल्फ एट होम. मेक योर सेल्फ एट होम का मतलब है अंदर आ जाओ घर के अंदर. जब भी कोई गेस्ट आता है वी से वेलकम, तो उसकी जगह में बोल सकते हैं मेक योर सेल्फ एट होम, मतलब कंफर्टेबल हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कम इन साइड, कम ऑन, वेलकम. फॉर एग्जाम्पल कम ऑन इन, मेक योर सेल्फ एट होम. कोई आपके घर के सामने आया, डोरबेल बजाई, तो यू कैन से कम ऑन इन, मेक योर सेल्फ एट होम, मतलब अंदर आ जाओ. नेक्स्ट इज इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड. दिस फ्रेज वी यूज व्हेन देयर इज सम कोइंसिडेंस. कोई भी जब इत्तेफाक हो जाता है कहीं पे, आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये पर्सन मुझे यहाँ मिल जाएगा और एकदम से वो मिल जाए, तो यू से इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, बहुत छोटी दुनिया है. नेक्स्ट इज एंजॉय योर स्टे विद अस. इसका मतलब है कि आप यहाँ पे रह के हमारे साथ एंजॉय करेंगे. द सेंटेंस वी कैन से इज आई होप यू एंजॉय द स्टे विद अस. मुझे उम्मीद है कि आप अपना यहाँ रहना एंजॉय करेंगे हम लोगों के साथ में. नेक्स्ट इज आई विल बी विद यू इन अ मोमेंट. इसका मतलब मैं थोड़ी देर में आके तुमसे मिलता हूँ. दिस नॉर्मली यू कैन यूज जब आप कॉल पे हो और आपका फ्रेंड कहीं आपका वेट कर रहे हैं, तो यू कैन से लाइक दैट स्टे देयर आई विल बी विद यू इन अ मोमेंट. मैं कुछ ही देर में आके तुमसे मिलूंगा. स्टे देयर आई विल बी विद यू इन अ मोमेंट. स्टे इन टच. ये नॉर्मली आप जब बोलते हो जब आप किसी फ्रेंड से मिलके वापस आ रहे हो घर पे, जब आप उससे मिल रहे हो, बोल रहे हो बाय, स्टे इन टच. टच में रहना, बात करते रहना, मिलते रहना. सो स्टे इन टच. See you, stay in touch. Next is not far from. Not far from का मतलब है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है. सपोज आपसे कोई एड्रेस पूछ रहा है बाहर आके, तो आप बोल सकते हो दिस प्लेस इज नॉट फार फ्रॉम हियर. ज्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है. दिस यू कैन यूज. नॉट फार फ्रॉम. जस्ट नेक्स्ट डोर. जस्ट नेक्स्ट डोर का मतलब है बाजू में ही है, बिल्कुल पास में ही, थोड़ा सा ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है. दिस यू कैन से अगेन व्हेन समबडी कम्स एंड आस्क एड्रेस, और आपको किसी को रास्ता बताना है, तो यू कैन से ज्यादा दूर नहीं है, जस्ट नेक्स्ट डोर. अनदर फ्रेज यू कैन यूज फॉर द सेम सिचुएशन इज जस्ट 2 minute वॉक फ्रॉम हियर. यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पास में ही है. जस्ट 2 minute वॉक फ्रॉम हियर. दिस प्लेस इज जस्ट 2 minute वॉक फ्रॉम हियर. नेक्स्ट इज लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी. लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी का मतलब है कि पार्टी की जान है. किसी भी इंसान के लिए हम बोल सकते हैं कि ये पार्टी की जान है. दैट गर्ल वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी. वो लड़की उस पार्टी की जान थी. दैट गर्ल वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी. नेक्स्ट इज वॉट आर यू थिंकिंग ऑफ. आप क्या सोच रहे हो. दिस यू कैन से व्हेन यू सिटिंग विद समवन और वो कुछ सोचने लग जाते हैं, बात नहीं कर रहे हैं, सो यू कैन ऑलवेज आस्क दैट पर्सन व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ. क्या सोच रहे हो तुम. व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ.
नेक्स्ट वन इज गेट मी सम वाटर। या आप अपने फैमिली मेंबर्स से भी बोल सकते हो घर पे जब आपको पानी पीना है, एंड यू कैन से प्लीज कैन यू गेट मी सम वाटर, मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला दोगे, कैन यू गेट मी सम वाटर। पुलिंग वंस लेग। पुलिंग वंस लेग का मतलब है किसी की टांग खींचना। हिंदी में आपने कई बार सुना होगा कि मेरी टांग मत खींचो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। सो पुलिंग वंस लेग मीन्स नॉट मेकिंग समबडीज फन इन अ हेल्दी वे, किसी का मजाक उड़ाना हेल्दी वे में, दैट इज पुलिंग वंस लेग। सो डोंट पुल माई लेग, फॉर एग्जाम्पल डोंट पुल माई लेग। नो बट थैंक्स फॉर आस्किंग। या आप जब बोल सकते हो जब आपको किसी ने कुछ ऑफर किया हो और आपको पोलाइटली उसको मना करना हो। किसी ने आपको पानी दिया, नो बट थैंक्स फॉर आस्किंग, मेरे को नहीं चाहिए पर थैंक यू आपने पूछा इसके लिए। नो बट थैंक्स फॉर आस्किंग। आई वुड रिकमेंड इट। आई वुड रिकमेंड इट का मतलब है मैं आपको ये सुझाव दूंगा। if somebody comes to you for any suggestion or for any review of something कि बताओ वो पार्लर कैसा है या वो सैलून कैसा है, so he will be like I would recommend it to you, मैं आपको वो recommend करता हूँ कि आप वहां जाओ, that is good, I would recommend it to you। नेक्स्ट इज couldn't be better। couldn't be better का मतलब है इससे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। ये आप जब बोल सकते हो जब किसी ने आपकी तबीयत पूछी हो। इफ somebody is asking you how do you do, how's your health, so you can say I am great, couldn't be better। couldn't be better मतलब मेरी तबीयत इससे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती, I am in a perfect state, मैं बिल्कुल अच्छा हूं, couldn't be better। नेक्स्ट वन इज वेरी कॉमन, long time no see। Now this you can use when you meet a friend after a long time, बहुत टाइम बाद आप किसी से मिले हो, so आप बोल सकते हो long time no see, मतलब अभी तक कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कहाँ पर थे, अभी तक मिले नहीं, long time no see, आपके बारे में कुछ पता नहीं है इतने टाइम से। So long time no see, where were you, how do you do। Now this one is one of my favorites, speak of the devil। हिंदी में आपने कई बार सुना होगा शैतान का नाम लिया और शैतान आ गया। So speak of the devil and the devil is here। This means speak of the devil and the devil is here। शैतान का नाम लिया और शैतान आ गया। This you can use when you're talking about some person or you're thinking about that person and that person arrives at your home or at that place there and then। Then you can say speak of the devil and the devil is here, or you can say think of the devil and the devil is here। नेक्स्ट वन इज वेरी कॉमन, लैच द डोर। लैच द डोर का मतलब है दरवाजा बंद कर दो। या आप जब बोल सकते हो व्हेन यू आर सिटिंग समवेयर और वट एवर यू आर डूइंग, सो यू कैन से प्लीज लैच द डोर, दरवाजा बंद कर दो, लैच द डोर। यू नो गाइज दीज फ्रेजेज विच आई एम टेलिंग यू, दे आर वेरी कॉमन एंड दे आर वेरी बेसिक। आपने कई बार सुने होंगे, कई लोगों के मुंह से सुने होंगे, पता भी होंगे आपको इनकी मीनिंग। हमें सब पता होते हैं, सबके मीनिंग्स पता होते हैं, सारे फ्रेजेस हमने सुने हुए होते हैं, बट द मेन प्रॉब्लम इज कि हम इन्हें यूज नहीं करते। हमको पता है ये फ्रेज इस जगह पे यूज हो सकते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू वेरी अनयूजुअल थिंग, ये बहुत यूजुअल चीज है, बहुत बेसिक चीज है, बहुत कॉमन चीज है कि हम इन फ्रेजेस को जानते हैं, इनकी मीनिंग जानते हैं, हमने सुने भी हैं अपने आसपास के लोगों से, लेकिन हम खुद इन्हें कभी यूज नहीं करते। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू यूज दीज फ्रेजेस इन योर डेली लाइफ कॉन्वर्जेशंस। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फ्रेज। नेक्स्ट फ्रेज इज हैंग इन देयर। हैंग इन देयर का मतलब है डोंट गिव अप, हार मत मानो, हैंग इन देयर, डटे रहो, काम करते रहो, डटे रहो, डोंट गिव अप, हैंग इन देयर। नेक्स्ट वन इज अगेन वेरी कॉमन, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक का मतलब है बहुत आसान है, बहुत ईजी है। किसी भी काम के लिए आप जो आपको बहुत ईजी लगता है, लाइक फॉर लेडीज इट्स कुकिंग मोस्टली, फॉर योर मदर्स इट्स कुकिंग, वो बोल सकते हैं इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक, मेरे लिए तो बहुत आसान है, मेरे लिए बहुत ईजी है। सो जब भी कोई काम आपके लिए बहुत ईजी हो, सो यू कैन से इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। Like English, after watching my videos, English will become just a piece of cake for you। Next one is cherry on top and icing on the cake। These two phrases mean the same। हिंदी में आपने कई बार सुना होगा सोने पे सुहागा, एक अच्छे काम में और अच्छी चीज। So icing on the cake और cherry on the top means the same। जब भी कोई चीज ऐसी होती है जहां पे आपको सोने पे सुहागा बोलना है, तो you can say it's just like cherry on the top or it's just like icing on the cake। नेक्स्ट वन इज वेरी बेसिक, दैट इज वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी। ये आप जब पूछ सकते हो जब कोई गेस्ट आपके घर पे आता है कि व्हाट वुड यू प्रेफर, कॉफी और टी, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी। आप उनसे पूछ रहे हो कि आप कॉफी लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी। नेक्स्ट वन इज आई यूज टू गो देयर। ये जब आप यूज कर सकते हो जब आपको बोलना हो कि कोई काम मैं करता था, ऐसा कोई काम जो आप पहले करते थे पर अब उसे कंटिन्यू नहीं कर रहे, जो काम आप पहले किया करते थे एक जमाने में पर अब उसे नहीं कर रहे। सो यू कैन से आई यूज टू डू इट बट आई डोंट डू इट नाउ। आई यूज टू गो देयर बट आई डोंट गो नाउ। मैं पहले जाया करता था पर अब नहीं जाता, या मैं पहले कोई काम को किया करता था पर अब मैं नहीं करता। डोंट टेक इट ऑन हार्ट, दिल पे मत लो।
या आप किसी को कंसोल करने के लिए बोल सकते हो जब किसी इंसान को आपकी बात से या किसी और की बात से बुरा लग गया, तो आप उसको बोलो कि डोंट टेक इट ऑन हार्ट, आई डिड नॉट मीन टू से दैट, और आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, प्लीज डोंट टेक इट ऑन हार्ट, दिल पे मत लो, डोंट टेक इट ऑन हार्ट। नॉट माई कप ऑफ टी, अभी आपने कई बार सुना होगा, नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स राइडिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब ये मेरे बस का नहीं है या ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, मुझे ये चीज पसंद नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई डोंट लाइक दिस, या मुझसे उसका कोई रिलेशन नहीं है। स्विमिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा काम नहीं है या मेरे को ये पसंद नहीं है या मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई डोंट लाइक दिस। This phrase can be used in a positive situation also and in a negative situation also. Not my cup of tea. Break a leg. Now this one also I love the most. Break a leg. Break a leg का मतलब है all the best या best of luck. अपना best करना, अपना अच्छे से करना. You're going there. I hope you win. Break a leg. बिल्कुल अच्छे से काम करके आना, बिल्कुल डरना मत. And be brave. Just break a leg. All the best. Break a leg. It takes two to tango. टैंगो एक डांस फॉर्म है, आपने कई बार सुनी होगी, टैंगो इज अ डांस फॉर्म। सो इट टेक्स टू टू टैंगो का हिंदी मतलब है एक हाथ से ताली नहीं बजती। दिस यू कैन यूज इन अ नेगेटिव सिचुएशन। दिस इज मोस्टली यूज्ड इन नेगेटिव सिचुएशंस, जब कोई किसी पे ब्लेम डाल रहा हो या कोई किसी को हर्ट कर रहा हो या फिर बोल रहा हो कि सिर्फ तुम्हारी गलती है, तो यू कैन से कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट टेक्स टू टू टैंगो, इट टेक्स टू टू टैंगो, कि सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं हो सकती, इस सिचुएशन में दोनों या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। इट टेक्स टू टू टैंगो, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट कांट बी ओनली हर मिस्टेक, इट टेक्स टू टू टैंगो। नेक्स्ट वन इज कम अगेन। कम अगेन का मतलब है मैंने सुना नहीं, सॉरी दोबारा बोलना, कम अगेन, प्लीज कैन यू कम अगेन। कम अगेन का मतलब है मैंने सुना नहीं, दोबारा बोलो, कम अगेन। So guys, in the beginning of the video, I told you that I'll be telling you some bonus words. So it's the time for those bonus words. So let's get going. So the first word is acquaintance. Acquaintance का मतलब है कि जब भी आपको किसी से बोलना हो कि ये सिर्फ मेरे जान पहचान का इंसान है, ये मेरा फ्रेंड नहीं है, ये मेरा रिलेटिव नहीं है, ये मेरा रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा सिर्फ जान पहचान का आदमी है या मैं इसको सिर्फ जानती हूँ, so you can say this is just an acquaintance of mine. He is just an acquaintance of mine. मैं इसको सिर्फ जानती हूँ, ओके, सो ही इज जस्ट एन अक्वेंटेंस ऑफ माइंड। नेक्स्ट वर्ड इज कोर्टशिप। कोर्टशिप का मतलब है वो पीरियड जो एंगेजमेंट और शादी के बीच का होता है, एंगेजमेंट के बाद का और शादी के पहले का, दैट पीरियड इज कॉल्ड द कोर्टशिप। सो एवरी टाइम यू मीट अ ब्राइड और ब्राइड टू बी, यू कैन से एंजॉय योर कोर्टशिप, ओके, जिसकी शादी होने वाली हो, एंगेजमेंट हो गई हो, सो विद कांग्रेचुलेशंस यू कैन से एंजॉय योर कोर्टशिप। So these were the bonus words I brought for you. I hope you loved them. Don't forget to subscribe to the channel. Oh, don't go anywhere. The video is not over yet. There are some more phrases. So let's get going. Next one is didn't catch your name. ये आप जब बोल सकते हो जब आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो और आपको एकदम से वो इंसान पहचानने में नहीं आ रहा। सपोज ये मोस्टली कब होता है, जब आपके बर्थडे होता है, लोग आपको विश कर रहे हैं, आप उन्हें ड्यू टू कर्टेसी आप उन्हें थैंक यू तो बोल देते हो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप पहचान नहीं पाते कि ये कौन है, तो उसने आपको बर्थडे विश किया, आपने थैंक यू बोल दिया, आफ्टर दैट यू विल बी सेइंग सॉरी बट आई डिड नॉट कैच योर नेम, मतलब मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, आपका नाम क्या था। या आप तब भी यूज कर सकते हो जब किसी ने आपको अपना नाम बताया हो लेकिन आप वो भूल गए हो, सो यू कैन से सॉरी आई डिड नॉट कैच योर नेम, सो व्हाट वाज योर नेम, आई डिड नॉट कैच योर नेम, आपका नाम क्या था, सो यू कैन से आई डिड नॉट कैच योर नेम। नेक्स्ट इज लेट्स कैच अप। नाउ दिस इज द स्लैंग फ्रेज यू मस्ट हैव हर्ड अमंग फ्रेंड्स, मोस्टली फ्रेंड्स आपस में बोलते हैं लेट्स कैच अप, मिलते हैं, लेट्स मीट, लेट्स कैच अप का मतलब है लेट्स मीट, मिलते हैं, लेट्स कैच अप इन अ मिनट, वील कैच अप इन अ मिनट, लेट्स कैच अप टुमारो और लेट्स कैच अप द कमिंग वीक। आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल वील टॉक लेटर, आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू, आप कुछ काम कर रहे हो, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, हम बाद में बात कर लेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू, वील टॉक लेटर, आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू, वील मीट लेटर, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू। नेक्स्ट इज आई एट ऑलरेडी। आई एट ऑलरेडी का मतलब है मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। इफ समबडी इज ऑफरिंग यू फूड, तो आप बोल सकते हो नो थैंक यू, आई एट ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। यू हैव, नो थैंक यू, आई एट ऑलरेडी, यू हैव इट। जब किसी ने आपको फूड ऑफर किया हो या कुछ भी ऑफर किया हो, तो यू कैन से आई एट ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, आई एट ऑलरेडी। आई एम नॉट रेडी एट। आई एम नॉट रेडी एट का मतलब है कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ,
अभी ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है. सपोज कोई रेस स्टार्ट होने वाली हो और आपसे कंफर्म किया जाता है कि आप तैयार हो, सो यू विल से नो आई एम नॉट रेडी येट, अभी मैं तैयार नहीं हूँ. और नॉर्मली भी जब आप तैयार हो रहे हो किसी पार्टी के लिए, इफ समबडी इज आस्किंग यू तैयार हो, सो यू कैन से नो आई एम नॉट रेडी येट, मैं अभी तैयार नहीं हूं, मुझे अभी और टाइम लगेगा, आई एम नॉट रेडी येट. लेट्स गो टेक अ लुक. इसका मतलब है चलो देखते हैं क्या हो रहा है. लेट्स गो टेक अ लुक. सपोज कोई चीज तैयार है, किसी ने आपको बुलाया कि देखो कैसी लग रही है, सो यू विल से टू योर फ्रेंड और एनीबडी, लेट्स गो टेक अ लुक, चलो चलते हैं देख के आते हैं कैसा है, लेट्स गो टेक अ लुक. नेक्स्ट इज मे बी नेक्स्ट टाइम. अभी आप जब बोल सकते हो जब आपको किसी को पोलाइटली रिफ्यूज करना हो. इफ समबडी इज ऑफरिंग यू टू कम होम और इफ समबडी इज ऑफरिंग यू टू कम फॉर लंच, यू कैन से नो नॉट नाउ, मे बी नेक्स्ट टाइम. हो सकता है अगली बार हम जरूर चलेंगे पर अभी नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम, वील श्योरली गो नेक्स्ट टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम. यू कैन ऑल्सो से मे बी सम अदर टाइम. इट्स नॉट वर्थ इट. इसका मतलब है कि ये कोई भी चीज जब किसी प्राइस और वो चीज एक दूसरे से मैच नहीं हो रही, ये आप नॉर्मली बार्गेनिंग के टाइम पे बोलते हो, नो इट्स नॉट वर्थ इट, ये इतना महंगा तो नहीं लग रहा, दिस ड्रेस इज नॉट वर्थ इट, इतनी ठीक नहीं लग रही, इतनी अच्छी नहीं लग रही, आई डोंट थिंक दिस ड्रेस इज वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट. जब कोई प्राइस आपको बहुत ज्यादा लग रही हो, वो चीज बहुत पेटी सी हो, तो यू कैन से इट्स नॉट वर्थ इट, इतनी प्राइस इसकी नहीं होनी चाहिए, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट वर्थ इट. सॉरी टू बॉदर यू. सॉरी टू बॉदर यू का मतलब है कि आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ. दिस यू कैन नॉर्मली से आफ्टर द सेंटेंस ऑल्सो एंड बिफोर द सेंटेंस ऑल्सो. आपको किसी को बोलना हो कुछ या फिर आपको किसी से बात करनी हो तो आप पहले भी बोल सकते हैं इस चीज की, प्लीज आई एम सो सॉरी टू बॉदर यू बट कैन यू टेल मी दिस. और या अपना काम होने के बाद भी बोल सकते हैं सॉरी टू बॉदर यू, आपको परेशान करने के लिए आई एम रियली सॉरी, सॉरी टू बॉदर यू. Next and the last one is don't mess with me. Now this is something very naughty and very notorious. Don't mess with me का मतलब है मुझसे पंगा मत लो. Don't mess with me. Don't you dare mess with me. मुझे परेशान मत करो. Don't irritate me. Don't mess with me. मुझसे पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है. Don't you dare mess with me. This you must have heard mostly by kids. बच्चे बहुत बोलते हैं ऐसा, वो धमकी भी देते हैं. Don't mess with me. So here we end up with all our phrases. I hope that they were helpful for you. I hope you use them in your daily life conversations because they are very basic, very common and very easy. It's just that you need to start today using them. Okay, so I hope you learned a lot from this video. My favorite part of this video is now I love giving homework. So today's homework for you people is you have to get the meaning of going places. There is a phrase going places or go places. आपको इसका meaning विथ सेंटेंस इसको आपको मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना है कि आपने इसको कहाँ यूज किया, इसका मीनिंग और इसका सेंटेंस आपको मुझे दोनों कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना है. यू हैव टू ऑल्सो टेल मी थ्रू कमेंट सेक्शन दैट विच वन वॉज योर फेवरेट फ्रेज इन टूडेज वीडियो फ्रॉम टूडेज वीडियो एंड टेल मी थ्रू कॉमेंट. आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स. आई वॉन्ट टू नो दैट यू यूज दीज फ्रेजेज इन योर डेली लाइफ. And don't forget to subscribe to the channel. Wait. The video is not over yet. I also promised you one more thing in the beginning of the video that I'll be telling you a myth. So the myth is tighten your belt. Tighten your belt normally हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं? नॉर्मली जब हमको ये बोलना होता है कि अब आपका टाइम आ गया है, नाउ यू टाइटन योर बेल्ट, कमर कस लो. हिंदी में आपने कई बार सुना होगा कमर कस लो. कमर कस लो का मतलब होता है कि आप हार्डवर्क करना शुरू कर दो. अब नाउ इट इज योर टाइम, अब आप हार्डवर्क करना शुरू कर दो जब किसी भी चीज की बिगनिंग हो रही हो. तो टाइटन योर बेल्ट इज नॉट यूज फॉर दैट. टाइटन योर बेल्ट तब यूज किया जाता है जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हो, जब किसी को पैसे की प्रॉब्लम हो, तब उसे वो सेविंग्स करने की ज्यादा जरूरत होती है. तब हम उसे बोल सकते हैं प्लीज टाइटन योर बेल्ट नाउ. अब आप अपने खर्चे कम कर दो, प्लीज डिक्रीज योर एक्सपेंसेस. Now you tighten your belt and not at the places to encourage someone to say now it is your time to start doing hard work. It is not so. Tighten your belt हमें किसी को encourage करने के लिए नहीं बोलना चाहिए और ये उसका इंग्लिश मीनिंग नहीं है कि कमर कस लो अब तुम्हारा टाइम आ गया अब तुम्हें हार्ड वर्क करना है. नहीं, टाइटन योर बेल्ट का मतलब होता है, दिस इज अगेन एन इंग्लिश फ्रेज, टाइटन योर बेल्ट हम तब यूज करते हैं जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हो, जब किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ रही हो, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हो, तब हम उसे बोल सकते हैं कि आप एक्सपेंसेस कम कर दो. Save your money, tighten your belt, save your money, don't increase your expenses, kindly decrease your expenses. अब अपने पैसे पे ज्यादा ध्यान दो, अपने काम पे ज्यादा ध्यान दो. Tighten your belt, don't do much of expenses, decrease your expenses, खर्चे कम करो. So here we end up with the video. I believe you loved it, which I know you did. So make sure you subscribe to the channel and don't miss the videos.
press the bell icon so that you can get the notification whenever I come online. God bless you all. Take care till we meet in the next video with some refreshing and fun topic. Bye bye.